So good evening, students. My lecture, second lecture, that is on the Bernoulli's equation of motion. Yesterday, we have studied the different type of the equations of the motion and also the derivation of the Euler's equation of motion, right? Now, this is very important one. Euler's equation of motion, this is also very important, and this Bernoulli's equation of motion, this is very important one. So, we will start this lecture, that is, what is the Bernoulli equation of motion, right? And how we can derive the Bernoulli's equation of motion, right? So, before deriving the Bernoulli's equation of motion, इसको ड्राइव करने से पहले फर्स्ट वी मस्ट नो द assumptions, जो हम assumption जो है जहां पे ले रहे हैं, what are the assumptions that we must know. So our topic is, जहां पे लिख लेते हैं हम Bernoulli's equation of motion. This is my lecture number 2 of the fluid dynamics. So before deriving the Bernoulli's equation of motion, first we must know what are the assumptions we are taking here. So assumptions क्या है हमारी? First assumption है the fluid is ideal, right? आपका fluid क्या होना चाहिए? The fluid is ideal. First assumption is fluid is ideal, or you can say ideal fluid आपका ये चाहिए. Second assumption क्या है? It should be steady. Flow क्या होना चाहिए? Steady flow होना चाहिए, right? Third one, incompressible fluid, right? Incompressible fluid जहां पे आपका rho is constant होगा, density is constant here. And fourth assumption is fluid is this steady flow and irrotational flow. जो आपका फ्लो है दैट शुड बी irrotational. अब irrotational का क्या मतलब है? दैट the fluid elements or fluid particles, you can say, they sometimes they revolve around its axis, right? And that is in the case of the rotational flow, or you can say in turbulent flow. You must see that कि जो आपका फ्लूइड पार्टिकल्स होंगे वो क्या है, रोटेट करते हैं अपने एक्सिस के ऊपर. तो हमारी ये assumption थी कि जो फ्लूइड है, जब फ्लो जो हमारा है दैट इज द irrotational फ्लो. सो दीज आर द 4 assumptions. पहले हम ये अपनी assumption समझ लेंगे. फ्लूइड इज आइडल फ्लूइड का क्या मतलब हुआ कि इसमें विस्कोसिटी जो है, हम क्या है, इसमें क्या है, इसमें विस्कोसिटी नहीं होनी चाहिए. विस्कोसिटी इज 0 हियर, और यू कैन से दिस इज ए नॉन विस्कस फ्लूइड, राइट? नॉन विस्कस फ्लूइड, विस्कोसिटी दैट इज 0. स्टेडी फ्लो क्या है कि जो भी पैरामीटर्स हैं इसके, चाहे वो वेलोसिटी है, चाहे एक्सेलरेशन है, दैट पैरामीटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट विल नॉट चेंज, or you can say that with respect to time those parameters are equal to 0, that will not change. Incompressible fluid means that where the rho is constant, fluid cannot be compressed here. Rho is constant. And irrotational flow means the flow that should be a irrotational one. These are the 4 assumptions which we have taken before deriving the equation. अब इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए जो फर्स्ट पार्ट है इसका इक्वेशन का, वो जो आपने जो एलोर्स थ्योरम ड्राइव किया था अप टू दिस पॉइंट, तो बर्नौलीज इक्वेशन को हम ड्राइव करेंगे. फर्स्ट वी मस्ट नो द एलोर्स थ्योरम ऑफ मोशन. तो एलोर्स थ्योरम ऑफ मोशन क्या था जो हमने कल ड्राइव किया था? एलोर्स थ्योरम of motion. What is Euler's theorem of motion? That is dp upon rho plus
जी जेड प्लस बी डी वी, दिस इज इक्वल टू 0. बी डी वी, this is equal to 0. This is your Euler's theorem of motion, right? This we have tried yesterday. अब इसके आगे हमें चलना है. If we have to calculate the Bernoulli's equation of motion, तो Euler's theorem of motion तक तो जो आपने ड्राइव किया है, the same procedure we have to follow, and then we will get this equation, that is the Euler's theorem of motion. ये जो आपकी एलोर थ्योरम ऑफ मोशन है, दिस पॉइंट जहां तक, इसको क्या करेंगे, इफ वी विल इंटीग्रेट दिस, हम इसको क्या करें, इंटीग्रेट दिस इक्वेशन ऑफ मोशन. तो इसका क्या है, इंटीग्रेट दिस, इंटीग्रेट करें तो क्या आएगा, ये dp अपॉन रो प्लस इंटीग्रेशन g, this is dz, g dz plus integration v dv, this is equal to integration of this 0, integration of 0 क्या होगा, कांस्टेंट होगा, राइट. तो we will integrate the Euler's equation of motion, और by integrating this, रो क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लीजिए, 1 अपॉन रो, इसका होगा आपका P, इंटीग्रेशन ऑफ डी पी इज P प्लस जी जेड, इंटीग्रेशन ऑफ जी इज आल्सो कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड इज जेड, एंड प्लस बी स्क्वायर वाई टू, this is equal to integration of 0 or integration of any integer, this is equal to constant, right, that is C. So this is your equation. तो ये क्या आ गया आपका, if I will divide this equation by G, मैं इस equation को G के साथ डिवाइड करता हूं, तो आपका आ गया P अपॉन रो जी प्लस जेड प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g, this is equal to constant, and this is your Bernoulli's equation of motion. This is very important one. P upon rho g plus z plus b square upon 2g. This is called the Bernoulli's equation of motion. You understand this? ये आपका Bernoulli's equation of motion, इसको मिटा देते हैं. So from this equation you can see here, this is P upon rho g, right? This is z, and this is b square upon 2g. This is constant. This is the Bernoulli's equation of motion. So जहां पे ये आपका जो P अपॉन रो जी, इसको मैं प्रेशर हेड भी बोलता हूं, प्रेशर हेड, इसको क्या बोलते हैं, प्रेशर हेड, जहां इसको हम बोलते हैं प्रेशर एनर्जी पर यूनिट, pressure energy per unit weight of the fluid. Pressure energy per unit weight of the fluid. Jet is called the potential head. Jet is called the potential head or the potential energy. Jet is called the potential head. Potential head
और इसको हम डेटम हेड भी बोलते हैं, पोटेंशियल हेड, डेटम हेड, इसको ये भी नाम है इसका, डेटम हेड, पोटेंशियल हेड, डेटम हेड और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट weight of the fluid, per unit weight of the fluid. And ये जो आपका b square upon 2g, this is called the kinetic head, kinetic head, जहां इसको हम velocity head भी बोलते हैं और velocity head राइट, इसको हम velocity head भी बोलते हैं, जहां राइट. So these are the this P upon rho g, this is pressure head और प्रेशर, इसको हम स्टैटिक हेड भी बोलते हैं, ऑब्लिक स्टैटिक हेड, इसको हम स्टैटिक हेड भी बोलते हैं, राइट. सो P अपॉन रो जी, दिस इज प्रेशर हेड, ऑब्लिक स्टैटिक हेड भी बोलते हैं. समटाइम्स आर द प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ द फ्लूइड. Z is the potential head or the datum head or potential energy per unit weight of the fluid, and V square upon 2G, this is kinetic head or the velocity head, right? So this is your Bernoulli's equation of motion, right? तो आप देखिए इसमें ये भी लिख लीजिए, इसमें काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट, राइट. सो दीज आर द, ये आपका बर्नौलीज इक्वेशन है, दिस इज योर बर्नौलीज इक्वेशन, राइट. दिस इज योर P अपॉन रो जी प्लस Z प्लस B स्क्वायर अपॉन 2G. जहां तक क्लियर है? What are the assumptions we have taken for driving the Bernoulli's equation? Fluid that should be ideal, steady flow, incompressible fluid, and irrotational flow. These are the assumptions which we have taken, and this equation is valid for this type of flow. जब इस किस्म का फ्लो होगा, इस किस्म का फ्लूइड होगा और इस किस्म का फ्लो होगा, कौन सा फ्लूइड होना चाहिए? आइडल फ्लूइड होना चाहिए. आइडल फ्लूइड का क्या मतलब है? दैट द विस्कोसिटी that should be zero, that should be unviscous fluid. Steady flow means that any parameter of the fluid, that is velocity or acceleration, that you can say with respect to time, that parameter that should be equal to zero, or you can say that parameters they should be constant there. Incompressible fluid, in that case the density you can say that is the constant, and irrotational fluid, the fluid that should be irrotational, that should not be rotational. So this is your Bernoulli's equation. अब इसको देखते हैं हम, इसकी अगर एप्लीकेशंस की बात करें हम, तो पहले हम देखेंगे कि बर्नौलीज इक्वेशन का क्या डेफिनेशन क्या हुआ, राइट. सो बर्नौलीज, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, बर्नौलीज इक्वेशन जहां से आपको क्या मिला, Bernoulli's equation states that Bernoulli's equations क्या बताती है? That in case of fluid
इन केस ऑफ फ्लो कर लीजिए, इन केस ऑफ स्टडी एंड in case of study and a rotational flow, in case of study and a rotational flow, the fluid is incompressible and unviscous, right? In case of study, a rotational flow, the fluid is incompressible and unviscous. क्या होगा? The energy at any point, the energy at any point, or you can say the total energy, the total energy, एनर्जी की जगह टोटल लिख लीजिए आप, the total energy at any point or section, the total energy at any point or section is constant. The total energy at any point or section is constant. तो इसने बर्नौलीज ने क्या कहा था कि अगर हमारा फ्लो जो है स्टडी है, एरोटेशनल है, और जो हमारा फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल है, इनविस्कस है, उस केस में क्या होगा, जो टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट, दिस इज योर टोटल एनर्जी, ये आपका टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट इज कांस्टेंट। सपोज मैं कहता हूं कि ये आपकी पाइप है, दिस इज योर पाइप, राइट? सो सपोज दिस इज योर पाइप, right? This is your pipe and the fluid is flowing in the pipe like this. The fluid is flowing in the pipe. If we will consider any two sections, right? If we will consider any two sections on the pipe, here we will find that the energy is constant, any two section. Suppose करो एक section में है, ये आपका, this is your one section, and this is your section number second, this is your section number 1, and this is your section number 2. These I've taken the two section, right? So he said that the total energy is constant, right? So you can say in case of this steady a rotational flow, the fluid is incompressible and viscous. Rotational. Rotational, right? Flow. The total energy at any point or section is constant. He said this thing, if we will consider the 2 points, and if these conditions are applicable on the fluid as well as on the flow, then the total energy at any point or section is constant. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम टोटल एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी दिस इक्वेशन, अगर मैं ये इक्वेशन लेता हूं P1 अपॉन रो जी प्लस B1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1, इसका क्या मतलब हुआ? P1 मीन्स प्रेशर एट द सेक्शन 1, B1 is the velocity of the fluid at section 1, and Z1, this is the datum height at section 1, right?
So that should be equal to, according to definition, that the total energy at any point of section is constant. So you can say if you have taken the two section here, so between these two sections at any point you can say the total energy जो आपका क्या होगा, constant होगा. तो जो जहां पे आपका total energy आपकी जहां पे आएगी, तो जहां पर भी आपकी total energy क्या होगी, सेम होगी, दैट शुड बी कांस्टेंट. तो इसका मतलब जहां पर क्या होगी, बराबर होगी. ये अगर है आपका P2 पान रो जी प्लस B2 स्क्वायर अपान 2G प्लस Z2, राइट? You understand this? This is for section 1 and this is for section 2. You understand this? This is for section 1 and this is for section 2. That total energy at any point or at any section, that is constant. So if we will consider two sections here, so you can say what is the total energies here, that is the same is the total energy at the section 2. You understand this? So this is the way that how we will apply the Bernoulli's theorem on a particular जो भी आपको एप्लीकेशन दिया होगा, फिर कैसे हम बर्नौलीज थ्योरम लगाएंगे कि आपको एक पॉइंट के ऊपर कुछ पैरामीटर्स दिए हैं, दूसरे पॉइंट के ऊपर कुछ पैरामीटर्स दिए हैं और कुछ मिसिंग है. आपने सपोज करो P2 आपको दिया है, B2 आपको दिया है, B1 आपको दिया है, जब B1 आपको नहीं दिया है, बट आपको क्या निकालना है, P1 निकालना है. So what is the pressure at point P1? Because this is the total energy head is equal. Total energy head जो है वो इक्वल होगा, टोटल एनर्जी आपका इक्वल होगा, ना कि सेपरेट जो पैरामीटर्स हैं ये आपस में इक्वल होंगे दोनों सेक्शंस में. यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? टोटल एनर्जी जो है वो आपका इक्वल है. सो वी हैव कंपेयर दिस टू इक्वेशन इक्वल, राइट? बट द पैरामीटर्स, अदर पैरामीटर्स यू कैन से दे आर नॉट इक्वल. यार दे कैन बी वेरी, दे कैन बी चेंज, बट द सम ऑफ ऑल दिस पैरामीटर्स एट द सेक्शन 1 and the sum of the other parameters at the section 2, that should be same. That is total head energy head जो है वो सेम होना चाहिए. तो जहां से हम क्या करते हैं कि हमारे पास कोई पाइप है, वहां पे पानी फ्लो कर रहा है पाइप में, राइट? तो हम उसमें अगर डिफरेंट पॉइंट के ऊपर कोई हमें पैरामीटर फाइंड आउट करना है कि फाइंड आउट द प्रेशर एट द पॉइंट 2, फाइंड आउट द वेलोसिटी एट द पॉइंट 2, राइट? तो हम उन पैरामीटर्स को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, विल यूज द बर्नौलीज इक्वेशन. इसका एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और दूसरा मैं आपको एक जहां पे और पॉइंट ऐड करना चाहता हूं, दैट इज नॉट द बर्नौलीज इक्वेशन बट दैट इज फ्रॉम द काइनेमेटिक्स. और काइनेमेटिक्स का मैं अभी चैप्टर आपको नहीं किया है. इस केस में क्या होगा कि जो आपका डिस्चार्ज जहां से होगा इनलेट के ऊपर, जो आपका डिस्चार्ज इनलेट के ऊपर होगा, तो डिस्चार्ज आपका आउटलेट के ऊपर भी क्या होगा, सेम होगा. तो अकॉर्डिंग टू द कंटिन्यूटी इक्वेशन जो होती है, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वो आपका होगा A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2, राइट? A1 B1 मीन्स डिस्चार्ज एट A1, A2 डिस्चार्ज एट 2, राइट? सो दिस इज इक्वल. सो हमें सम प्रॉब्लम्स में क्या दिया होगा, हमें एरिया तो होगा ही होगा क्योंकि डायमीटर ऑफ द पाइप दिया होगा, राइट? तो अगर पाइप जो है इस तरीके से है, यूनिफॉर्म पाइप है, तो A1 इज इक्वल टू A2, बट समटाइम्स वी आर हैविंग द टेपर्ड पाइप आल्सो. सो द एरिया यू कैन से दैट इज डिफरेंट एट सेक्शन 1 एंड एरिया इज डिफरेंट एट सेक्शन 2. सो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, if you are having the velocity at the point B1, you can calculate the velocity at point B2. You understand? So इसका जो एप्लीकेशन है बर्नौलीज इक्वेशंस का और कंटिन्यूटी इक्वेशन का, ये हमारे फ्लो थ्रू पाइप में बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट होगा. दिस इज ए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हियर. सो आई सेड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन टू अंडरस्टैंड. यू अंडरस्टैंड दिस? ये सारा आपको क्लियर हो गया. नेक्स्ट देखिए आगे. अच्छा, जहां तक क्लियर है. अब दूसरा हम देखेंगे, ये जो हमने इक्वेशन जो आपका था बर्नौलीज इक्वेशन दैट आई हैव राइट फॉर द आइडियल फ्लूइड. अब इसकी बर्नौलीज इक्वेशन हम फॉर द रियल फ्लूइड, अगर रियल फ्लूइड है हमारा, सो हेडिंग होगा आपका बर्नौलीज
इक्वेशन फॉर रियल फ्लूइड। अब देखिए, जो पीछे हमने बर्नौलीज इक्वेशन जो ड्राइव किया था वो मैंने आइडियल फ्लूइड के लिए किया था, राइट। आइडियल फ्लूइड का मतलब जब मैंने विस्कोसिटी जो थी वो क्या लिया था, 0, दैट विस्कोसिटी वहां पे क्या है, नहीं है। सो आइडियल फ्लूइड में मैंने लिया था विस्कोसिटी इज 0। बट इन केस ऑफ रियल फ्लूइड, इफ यू विल टॉक टू द रियल फ्लूइड, यू नो विस्कोसिटी 0 नहीं होता। इन केस ऑफ रियलिटी इफ यू विल सी, तो विस्कोसिटी जो आपका फैक्टर है रियल फ्लूइड में, विस्कोसिटी जो आपका फैक्टर है वो कभी 0 नहीं होगा। ऑलवेज देयर इज सम विस्कोसिटी इन द फ्लूइड, राइट, और यू कैन से फ्लूइड इज विस्कस इन दिस केस। तो अगर रियल फ्लूइड की अगर विस्कोसिटी होगी तो व्हाट हैपेंस, जब फ्लूइड फ्लो करेगा व्हाट हैपेंस देयर, तो विस्कोसिटी क्या करेगी, उस दैट विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू रेजिस्ट द फ्लो। एंड व्हेन viscosity will try to resist the flow, what happens, there is some heat formation, there is some heat losses there, so you can say some losses will develop in that case. Ideal fluid की बात करें तो वहां पे मैंने losses को कंसिडरेशन में नहीं लिया था। But in case of real fluid, or you can say in actual, क्या होता है कि viscosity fluid की 0 नहीं होती है, always there is a viscosity हम doesn't consider that is 0. So in case of real fluid, what happens, the viscosities play a very important role, or you can say that will resist the flow. And when that will resist the flow, what happens, there is some friction losses, you can say. In this case the fluid is not frictionless, you understand this, so there are some friction losses. So that friction losses that has to be taken into the consideration, you understand this. So if there are two sections and we are applying the Bernoulli's theorem between the two sections, suppose at section 1 and at section 2, you understand this, so जो आपके losses होंगे that will be taken into the consideration. जैसे सपोज करो मैंने यही आपको एग्जांपल दिया था, ये आपका पाइप है, दिस इज पाइप फ्लो, राइट, एंड ये आपका सेक्शन 1, ये आपका सेक्शन 2 है, लाइक दिस, ठीक है। तो जहां पे क्या होगा, ये आपका सेक्शन 1, ये आपका सेक्शन 2, तो फ्लूइड जो आप इसके बीच में है वो कौन सा फ्लूइड है, रियल फ्लूइड। रियल फ्लूइड इज फ्लोइंग, फ्लूइड कौन सा है, रियल फ्लूइड है। सो अगर मैं रियल फ्लूइड की बात करूं तो रियल फ्लूइड में क्या है, रियल फ्लूइड जो आपका होगा, विस्कोसिटी डज नॉट इक्वल 0, राइट। विस्कोसिटी इस केस में क्या होगा, 0 नहीं होगी रियल फ्लूइड में। एंड जब विस्कोसिटी 0 नहीं होगी, व्हाट हैपेंस, आर यू कैन से आर फ्लूइड इज नॉट फ्रिक्शनलेस, फ्लूइड क्या होगा, फ्रिक्शनलेस नहीं होगा। सो व्हेन द फ्लूइड विल फ्लो फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 2, तो जब सेक्शन 1 से सेक्शन 2 में फ्लूइड फ्लो करेगा तो व्हाट हैपेंस, दिस विस्कोसिटी, or you can say viscous force, that will play important role, that will resist the flow of the fluid. And when it will resist the flow of the fluid, definitely there will be some losses there, and that losses we have to take into the consideration when we are applying the Bernoulli's theorem between any two section or any 2 point. तो उस केस में क्या होगा कि जो आपकी बर्नौलीज इक्वेशन होगी वो V1 अपान रो जी एट 1 तो सही रहेगा, B1 स्क्वायर अपान 2G प्लस Z1, जहां पे तो जो पैरामीटर है दे ऑल रिमेन सेम। लॉसेस हमारे जो होंगे वो कहां पे होंगे, इस साइड के ऊपर लॉसेस होंगे एट द पैरामीटर 2
जो सेक्शन 2 है हमारा, वहां पे लॉसेज होंगे, क्योंकि फ्लूइड जो है जहां से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लूइड। तो जैसे जैसे ये मूव करेगा, विस्कस फोर्स क्या है करेगा, विस्कस फोर्स विल प्ले द इंपॉर्टेंट रोल और रेजिस्ट द फ्लो। और जब ये फ्लो को रेजिस्ट करेगा तो फ्रॉम हियर टू हियर फ्लूइड तो मूव कर रहा है, जहां से लेके जहां तक क्या होगा, इसमें लॉसेस वेल्थ होंगे, राइट। सो दैट लॉसेस दैट हैज टू बी टेकन टुवर्ड दिस साइड। सो जो टोटल प्रेशर हेड इस साइड के ऊपर होगा, रियल केस में वो प्रेशर हेड जो है दिस साइड प्लस लॉसेस, तब इक्वेशन आपकी बराबर होगी। यू अंडरस्टैंड दिस? तब आपकी इक्वेशन बराबर होगी, क्योंकि when the fluid will move from the section 1 to 2, what happens, there will be some losses there. So when there are some losses, it means that the total energy the total energy at section 1 is greater than the total energy at the section 2, because what happens, there are some losses। तो जब फ्लूइड जहां पे पहुंचेगा, तो जो जहां पे टोटल एनर्जी होगी, जहां पे टोटल एनर्जी एट सेक्शन 2 के ऊपर क्या होगा, वो कम हो जाएगी, वो लेस होगी। कितनी लेस होगी, जितने इसके लॉसेस होंगे। तो हम क्या करेंगे, उस वक्त हमारी बर्नौलीज इक्वेशन बनेगी एट 2 के ऊपर क्या है, P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2 प्लस लॉसेस। यू अंडरस्टैंड दिस? जब हम इधर लॉसेस को ऐड करेंगे एट सेक्शन 2 में, तब ये दोनों इक्वेशंस का जो टोटल एनर्जी हेड होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। देन ओनली इट कैन बी इक्वल इन केस ऑफ रियल फ्लूइड। यू अंडरस्टैंड दिस? अगर हम सिर्फ इतना लिखते हैं, रियल फ्लूइड में इतना लिखते हैं, तो ये कभी इक्वल नहीं होगा। रीजन इज वी आर टेकिंग द फ्लूइड इज नॉन विस्कस, फ्लूइड इज रियल। So when the fluid will move from one point to another point, or from one section to another section, what happens during the flow, there must be some losses there, because the viscous force or viscosity that will resist the flow, and when that will resist the flow, what happens when there is a friction or resistance, what happens, there is the heat formation, there are some losses। तो जब फ्लूइड आपका इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचेगा, उस वक्त जो आपका टोटल एनर्जी हेड होगा जहां का, और जहां का ये टोटल एनर्जी हेड एट पॉइंट 2 इज लेस देन दैट ऑफ द टोटल एनर्जी हेड एट पॉइंट 1। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? एंड इट इज हाउ मच लॉस, दैट इज द लॉसेस व्हिच अकर ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ द लिक्विड फ्रॉम सेक्शन 1, फ्लो ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 2। जितने लॉसेस फ्रॉम सेक्शन 1 से सेक्शन 2 के दौरान होंगे, उतना इसका हेड कम होगा। सो इफ वी वांट टू इक्वेट द इक्वेशन, तो आपकी इक्वेशन क्या होगी, प्लस लॉसेस, इसका प्लस लॉसेस कर लीजिए। एंड नाउ दिस इज द बर्नौलीज इक्वेशन फॉर द रियल फ्लूइड। यू अंडरस्टैंड दिस? तो लॉसेस को हम लेते हैं प्लस HL भी करते लिखते, समटाइम्स लिखा होता है लॉसेस की जगह HL, हेड लॉस इसको बोलते हैं, हेड लॉस HL इज द हेड लॉस। यू अंडरस्टैंड दिस? अच्छा, इसमें एक पॉइंट मैं आपको और बताना चाहता हूं, वन पॉइंट मैं आपको और बता, एक आपने नाम सुना होगा फिजियोमेट्रिक हेड। व्हाट इज फिजियोमेट्रिक हेड? फिजियोमेट्रिक हेड जो आपका है, अगर मैं बात करूं फिजियोमेट्रिक हेड की, आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू एंड वी शुड नॉट रिक्वायर दैट। इसको मिटा दीजिए आप। सो फिजियोमेट्रिक हेड की अगर, क्योंकि समटाइम्स आपको प्रॉब्लम में आएगा जब फिजियोमेट्रिक हेड, व्हाट इज दिस? फिजियोमेट्रिक हेड होता आपका P1 अपॉन रो जी प्लस Z1, राइट? ये सेक्शन 1 के ऊपर, और अगर सेक्शन ये आपका सेक्शन 1 के ऊपर है फिजियोमेट्रिक हेड की अगर बात करूं मैं एट सेक्शन 1, और अगर सेक्शन 2 की बात करूं, अगर मैं बर्नौलीज इक्वेशन के हिसाब से, तो P2 अपॉन
रो जी प्लस जेड। तो फिजियोमेट्रिक हेड इज द सम ऑफ द प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड। यू अंडरस्टैंड दिस? फिजियोमेट्रिक हेड क्या है? सम ऑफ द प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड। दिस कंसेप्ट यू मस्ट नो दैट, आपको ये याद होना चाहिए। व्हेन somebody will ask to calculate the physiometric head in some applications, you will find this thing, they will say calculate the physiometric head। तो physiometric head means P1 upon rho g plus Z1। अगर आप सेक्शन 1 की बात करें तो अगर आप इस तरीके से ले लें, P1 P2 लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा ले लो। physiometric head is pressure head plus datum head, this is the physiometric head। you understand this? अब हम इसकी कुछ एप्लीकेशंस के बारे में एक दो प्रॉब्लम करते हैं, सो दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट हाउ दिस बर्नौलीज इक्वेशन इज दैट मच इंपॉर्टेंट और इट इज हैविंग दैट मच ऑफ इंपॉर्टेंस। इसका बहुत इंपॉर्टेंस है हमारा जब हम फ्लो थ्रू पाइप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये बर्नौलीज इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्बर्ट्स इक्वेशन किस लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एल्बर्ट्स इक्वेशंस को ही फर्दर हम कंटिन्यू करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं तो बर्नौलीज इक्वेशन बनती है। और यू कैन से जो बर्नौलीज इक्वेशन का बेस है दैट इज द एल्बर्ट्स इक्वेशन। यू अंडरस्टैंड दिस? तो अब कुछ हम थोड़ी एक दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं, राइट? So just see one application. Right. So first we will read the question. What is the question? This is the practical application of the Bernoulli's equation। क्योंकि जहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि बर्नौलीज इक्वेशन हमारे लिए वाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। ये खासकर ये टॉपिक आपका जो था फ्लूइड डायनेमिक्स में जो आपका एनर्जी इक्वेशंस हैं, एल्बर्ट्स इक्वेशंस हैं, बर्नौलीज इक्वेशन हैं, वाई दे आर इम्पोर्टेंट, so that you can understand now। The question is, a pipe through which the water is flowing is having diameters 20 centimeter and 10 centimeter respectively at the cross section 1 and 2। तो ये आपकी पाइप है। पाइप क्या है? ये टेपर्ड पाइप है। इसने बताया है कि जो एट सेक्शन 1 है इसका डायमीटर पाइप का कितना है? 20 सेंटीमीटर and at section 2 the diameter is 10 centimeter, right? And the water is flowing in the pipe। You understand this? तो D1 जहां पे लिख लेते हैं, अगर हम D1 आपका कितना है? 20 सेंटीमीटर, राइट, गिवन में। और दूसरा D2 जहां पे दिया है, D2 कितना है आपका? दिस इज योर 10 सेंटीमीटर, राइट। ये क्रॉस सेक्शन एट 1 के ऊपर डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, एट क्रॉस सेक्शन 2 के ऊपर जो उसका क्रॉस सेक्शन का डायमीटर है दैट इज 10 सेंटीमीटर। द वेलोसिटी ऑफ द वाटर एट सेक्शन 1, तो सेक्शन 1 के ऊपर वेलोसिटी ऑफ द वाटर दिया है 4 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ द वाटर दिया है एट सेक्शन 1, राइट। फाइंड द वेलोसिटी एट सेक्शन 1 एंड 2। हमें क्या निकालना है? व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? वेलोसिटी हेड निकालना है। वेलोसिटी हेड एट सेक्शन 1 ये निकालना है। और दूसरा हमें वेलोसिटी हेड एट सेक्शन 2 ये निकालना। दिस वी हैव टू फाइंड आउट। एंड रेट ऑफ डिस्चार्ज, और साथ में क्या निकालना है हमें? व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? रेट ऑफ डिस्चार्ज। रेट ऑफ डिस्चार्ज मीन्स क्यू
we have to calculate. So this is the problem, and these parameters are, some parameters are given and some we have to find out. जे देखिएगा, इसमें बर्नौलीज थ्योरम का एप्लीकेशंस, हाउ वी विल अप्लाई द एप्लीकेशन एंड हाउ वी विल फाइंड these parameters, right? अब इसको मिटा दीजिए, there is no fun of this. अब आ जाइए इस प्रॉब्लम के ऊपर, ये हमारा प्रॉब्लम बन गया। सो देखिए, हमें निकालना है, एक निकालना है, गिवन तो दिया है, जहां पे दिया मैं सीधा सॉल्यूशन के ऊपर आता हूं। सॉल्यूशन आपका क्या है? फर्स्ट वी हैव टू, ये देखिए पहले हम A1 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल लेते हैं। तो A1 क्या होगा? A1 है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट द सेक्शन 1। ये याद रखिएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट सेक्शन 1 इज A1। सो दिस इज इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू D1 स्क्वायर, बिकॉज इट इज ए सर्कुलर पाइप, राइट? पाइप क्या है? सर्कुलर है, तो इसका एरिया क्या होगा? पाई बाई 4 इंटू D1 स्क्वायर। तो इसको आप पुट कर लीजिए, पाई बाई 4 इंटू 20 सेंटीमीटर है, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 0.2 का होल स्क्वायर। तो बताइए कितना आया ये? (0.0314 मीटर स्क्वायर। सो ये आपका आ गया 0.0314 मीटर स्क्वायर। एक एरिया आपने निकाल लिया जहां से, क्योंकि डायमीटर दिया है, तो यू विल कैलकुलेट द एरिया। अब सेक्शन 2 का एरिया निकाल लीजिए। अगर A2 इज द एरिया ऑफ सेक्शन 2, तो ये आपका आ गया पाई बाई 4 इंटू D2 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू कितना है? 10 सेंटीमीटर है, ये आपका आ गया 0.1 का होल स्क्वायर। ये मुझे बता के बताइए कितना आ गया ये? जीरो पॉइंट 0.00785 मीटर स्क्वायर। सो आपका आ गया 0.00785 मीटर स्क्वायर, राइट? तो आपने ये निकाल ली, दिस इज क्लियर। अब आ जाइए, हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी हेड एट सेक्शन 1। तो वेलोसिटी हेड एट सेक्शन 1 क्या होगा? वेलोसिटी हेड क्या था? अभी आपने बर्नौलीज इक्वेशन ड्राइव किया। व्हाट इज योर वेलोसिटी हेड? दैट इज v1 स्क्वायर अपॉन 2g, राइट? वेलोसिटी हेड एट सेक्शन 1। तो v1 तो आपको दिया है 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.81, राइट? तो इसको कैलकुलेट कर लो आप, वेलोसिटी हेड, यू विल गेट द वेलोसिटी हेड हियर। सो दिस इज हाउ मच? सो वेलोसिटी हेड एट सेक्शन 1, तो वेलोसिटी हेड आपने कैलकुलेट कर लिया, v स्क्वायर पार 2g, दिस इज इक्वल टू 0.0815 मीटर, राइट? सो वेलोसिटी हेड आपका आ गया so you have calculated the velocity head. You understand this? Velocity head you have calculated.
Now the next but we have to calculate the second velocity head. अच्छा, सेकंड हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी हेड वी हैव कैलकुलेटेड हियर. सेकंड हमें निकालना है वेलोसिटी हेड एट सेक्शन 2, राइट? तो वेलोसिटी हेड एट सेक्शन 2 क्या होगा? दैट इज वेलोसिटी हेड एट सेक्शन 2. वेलोसिटी हेड एट सेक्शन 2 क्या होगा आपका? v2 square by 2g. v2 is the velocity at section 2. तो velocity at section 2 के ऊपर क्या होगा? v2 square by 2g. अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास what is given first see here, हमें v1 दिया था, बाकी diameters दिया है. So we are not having the value of v2. v2 की वैल्यू हमें नहीं दी है. So it means that to calculate the velocity head at section 2 of the pipe, first we have to find out the value of the velocity at section 2. हमें section 2 के ऊपर velocity की वैल्यू हमें चाहिए. तो ये वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? How we will calculate the value? So when I was driving this, मैंने आपको एक continuity equations के बारे में बताया था कि continuity equation क्या कहती है कि rate of discharge at section 1-1, this is equal to rate of discharge at section 2-2. This is the continuity equation, right? तो rate of discharge at section 1, this is equal to, इसको मिटा देते हैं, चलो रहे. So rate of discharge at section 1, this is equal to rate of discharge at section 2, right? So therefore आप कह सकते हैं apply continuity equation at section 1 and 2. सेक्शन 1 और 2 के ऊपर आप क्या करें? कंटिन्यूटी इक्वेशन आप अप्लाई करके बता दें, राइट? तो क्या होगी कंटिन्यूटी इक्वेशन एट सेक्शन 1? डिस्चार्ज मींस Q1 at 1, this is equal to Q2, Q1 at 1, this is equal to Q2, right? ये continuity equation कहती है. What is the continuity equation? The discharge at section 1, this is equal to the discharge at section 2, right? When the fluid is flowing through the pipe, this is in that case. A1, B1, this is, तो discharge क्या होता है? What is Q1? Q1 आपका क्या है? Area into velocity, that is the discharge, right? A1, this is the discharge, Q1. और इसी तरीके से आपका जो Q2 होगा, this is equal to A2 into B2. You understand this, right? A1 B1, this is equal to A2 B2. This is the continuity equation. तो हम continuity equation क्या होगी आपकी? अब थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा मुझे. ये वैल्यू थोड़ा सा मुझे चाहिए, आप नोट कर लीजिए वैल्यू. सो A1 की वैल्यू मैं इधर लिख लेता हूं. A1 की वैल्यू थी 0.0314 मीटर स्क्वायर. A2 की वैल्यू है 0.00785 मीटर स्क्वायर. हाँ, और तो नहीं चाहिए मुझे कोई भी, राइट? वेलोसिटी हेड अपने हेड सेक्शन 1 के ऊपर निकाल लिया था. दिस इज द वेलोसिटी हेड सेक्शन 1. इसको रेड 1 से हम कर लेते हैं ताकि को पूछा गया था कि वेलोसिटी हेड एट सेक्शन 1 कैलकुलेट करो, तो ये आपने फर्स्ट पार्ट इसका कर लिया था, राइट? तो अब और कोई हमें मुझे जरूरत नहीं है. सो आई विल रब इट. तो ये आप मिटा दीजिए सो दैट हम प्रॉब्लम को आगे कर सकें. सो आई एम यूजिंग द, क्या यूज करें? कंटिन्यूटी इक्वेशन. सो यूज द कंटिन्यूटी इक्वेशन. क्या होगी एट सेक्शन 1 मींस A1 B1
दिस इज इक्वल टू A2B2, राइट। A1 B1, जहां से हम क्या करेंगे, B2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो A1 आपके पास है 0.0314 into what is B1, that is given 4. This is equal to what is A2, 0.785 into B2. Therefore B2, this is equal to 0.0314 into 4 divided by 0.00785। तो आपको जहां से क्या होगा, B2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ B2। सो 0.0314 जब 4 डिवाइडेड बाई 0.00785, दिस इज 16। तो B2 की वैल्यू आई हमारी 16 मीटर पर सेकेंड, 16 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी B2। जब आपके पास B2 आ गया, नाउ यू कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी एट द सेक्शन 2, बिकॉज दिस यू हैव टू कैलकुलेट। तो जहां से आप वेलोसिटी एट सेक्शन 2 कैलकुलेट करेंगे, ये आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन थी। मैंने कहा था ना ये जो आगे प्रॉब्लम्स होंगी उसमें कंटिन्यूटी इक्वेशन और बर्नौलीज इक्वेशन दोनों का इस्तेमाल होगा, राइट। अब B2 पर वेलोसिटी had at section 2 क्या होगा, दिस इज इक्वल टू B2 स्क्वायर अपॉन 2G। तो यह होगा 16 का स्क्वायर 2 इंटू 9.81, सो मच इट इज this is so this is 83.047। सो 83 अब ले लीजिए, तो ये आपका आ गया 83 मीटर ऑलमोस्ट, ठीक है। दिस इज द वेलोसिटी एट सेक्शन 2। ये दो चीजें निकाल ली आपने, यू अंडरस्टैंड दिस। अब आपने थर्ड क्या निकालना है, ये भी आपका हो गया। सो दिस यू हैव टू फाइंड आउट। अब आपने निकालना है डिस्चार्ज। क्या निकालना है आपने, डिस्चार्ज निकालना है। डिस्चार्ज मीन्स क्या हो, अब आपने निकालना है डिस्चार्ज क्यों। तो मैंने जैसे आपको ये आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपका जो A1 B1 दिस इज इक्वल टू A2 B2, जो डिस्चार्ज आपका सेक्शन 1 के ऊपर होगा वही डिस्चार्ज आपका सेक्शन 2 के ऊपर होगा। तो डिस्चार्ज निकालने के लिए आइदर आप ये फार्मूला यूज कर लीजिए A1 B1, तब भी डिस्चार्ज आएगा सेम। A2 B2 करें तब भी सेम आएगा, राइट। तो मैं A1 B1 को कर लेता हूं। तो डिस्चार्ज आपका Q जो है A1 B1, तो Q मैं ले रहा हूं जहां पे A1 B1 दिस इज इक्वल टू A1 कितना था 0.0314 एंड व्हाट इज योर B1, दैट इज 4। दिस इज इक्वल टू हाउ मच, चला बताइए मुझे ये कितना है। 0.1256 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये आपका आया 0.1256 मीटर क्यूब पर सेकेंड। दिस इज द डिस्चार्ज। ये डिस्चार्ज आपने फाइंड आउट कर लिया।
तो ये डिस्चार्ज आपका मीटर क्यूब पर सेकंड में था, तो अगर मैं इसको लीटर में चेंज करना इसको लीटर में चेंज करना है तो किस तरीके से करेंगे? 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर आपका होता है? 1000 लीटर। तो ये दैट इज मल्टीप्लाइड बाई 1000। सो देयरफॉर ऐसे लिख सकते हैं आप, क्यू दिस इज इक्वल टू 0.1256 इंटू 1000, ये लीटर पर सेकेंड आ जाएगा, राइट। एंड आई थिंक दिस इज 125.6 लीटर्स पर सेकेंड। तो ये आपका प्रॉब्लम हो गया। यू अंडरस्टैंड दिस? आपको पता चला कि जहां पे हम किस तरीके से प्रॉब्लम को हमने किया। ये थोड़ा सिंपल प्रॉब्लम था। अब इसके बाद और प्रॉब्लम करेंगे जहां से आपको पता लगेगा कि हम बर्नौलीज इक्वेशन भी हम वहां पे इस्तेमाल करेंगे। ये तो सीधा निकल गया, सिर्फ कंटिन्यूटी इक्वेशन की, बाकी सब कुछ दिया था। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट वी विल सी। So this is numerical number 2. अब देखिए, इसको पढ़िए ध्यान से। अब the water is flowing through a pipe having diameters of 20 centimeter and 10 centimeter at section 1 and 2 respectively. तो इसका जो डायमीटर है, ये कितना डायमीटर है इसका? इस सेक्शन 1 के ऊपर D1 दिस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, और ये आपका जो D2 है दिस इज 10 सेंटीमीटर, राइट। एट सेक्शन 2 ये आपका सेक्शन 1 ले लीजिए आप, दिस इज योर सेक्शन 1 दिस इज योर सेक्शन 1 एंड दिस इज योर सेक्शन 2, राइट। सो दीज आर द टू सेक्शंस हियर। Diameter at section 1 and 2 is given. The rate of flow through the pipe is 35 लीटर पर सेकेंड। तो रेट ऑफ फ्लो भी दिया गया है, तो हम लिख सकते हैं जहाँ पे। तो D1 आपका दिया है 20 सेंटीमीटर, राइट। एंड Q रेट जो आपका दिया है दैट इज 35 लीटर्स पर सेकेंड, 35 liter per second. The section 1 is 6 meter above the datum and section 2 is above the 4 meter above the datum. ये जो datum line है, जहां से section 1 उसने दिया है कि 6 मीटर above है, और ये जो पोर्शन है, ये जो section 2 है, ये आपकी datum से कितना है? 4 मीटर above है। अब जहां से आपको क्या मिलेगा? फर्स्ट पॉइंट यू मस्ट अंडरस्टैंड, ये जो डेटम से इसने डिस्टेंस दिया है 6 मीटर, इसका मतलब है कि आपको Z1 दिया है, Z1 इज गिवन 6 मीटर, और जहां से डेटम से डिस्टेंस दिया है इसका 4 मीटर, तो Z2 दिस इज आल्सो गिवन दैट इज 4 मीटर। यू अंडरस्टैंड दिस? तो डिस्टेंस फ्रॉम द डेटम जब ये दिया जाता है तो दिस इज कॉल्ड द Z1 और Z2, राइट। दैट इज द डेटम हेड इज गिवन। If the pressure at section is 39.24, section 1 के ऊपर प्रेशर है, this is pressure section 1 है। If the pressure at section 1 is 3. तो P1 भी आपको दिया है, जहां लिख लेते हैं हम P1, this is 3.94 न्यूटन। इसका यूनिट देख लीजिए, इसने सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है। हमें क्या निकालना है? फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर एट सेक्शन 2। हमें निकालना है P2। सो दिस इज योर प्रॉब्लम। ये आपको प्रॉब्लम में गिवन है और ये आपको निकालना है। अब देखिए, जहां पे हम इस प्रॉब्लम को प्रेशर P2 को निकालने के लिए हम जहां पे बर्नौलीज इक्वेशन एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर अप्लाई करेंगे, और जो बर्नौलीज इक्वेशन एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर था वो क्या था? बर्नौलीज इक्वेशन एट 2 डिफरेंट पॉइंट क्या होगा? क्या बताया था मैंने आपको? टोटल एनर्जी एट एनी सेक्शन, टोटल एनर्जी एट एनी सेक्शन ऑफ द पाइप क्या होगा? दैट टोटल एनर्जी इज इक्वल, राइट। टोटल एनर्जी क्या होगी? इक्वल होगा। तो इसको हम मिटा देते हैं। हमें निकालना है P2, राइट। हमें क्या निकालना है? P2 निकालना है।
तो P2 निकालने के लिए अगर मैं बर्नौलीज इक्वेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स लेता हूं, मींस बर्नौलीज इक्वेशन between section 1 and 2 अप्लाई है। क्या होगा? बर्नौलीज इक्वेशन क्या थी? P1 अपान रो जी प्लस Z1 प्लस V1 स्क्वायर अपान 2G, दिस इज इक्वल टू P2 अपान रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपान 2G प्लस Z2। चलो इसको सीक्वेंस में लिख लो, दैट इज Z2 प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G। दिस इज द बर्नौलीज इक्वेशन बिटवीन द टू सेक्शन, राइट। तो बर्नौलीज ने क्या कहा था कि दो सेक्शन के बीच में क्या होगा, आपका जो टोटल एनर्जी होगा वो कांस्टेंट होगा। कहीं भी आप सेक्शन 1 में जो टोटल एनर्जी होगा वही आपका टोटल एनर्जी आपका सेक्शन 2 में होगा। अब देखिए जो आपको दिया गया है, देखिए इसमें P1 आपको दिया है, रो की वैल्यू तो आपको पता है वाटर के केस में 1000 होती है, जी आपको 9.81, तो आपको ये मिल गया। Z1 भी आपको दिया है और Z2 भी आपको दिया गया है। हमें क्या निकालना है? हमें ये निकालना है P2 हमें निकालना है, बट हमें V1 स्क्वायर बाई 2G एंड V2 स्क्वायर बाई 2G इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है। मींस इसकी वैल्यू निकालने के लिए बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2। इसका मतलब है कि सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा कि B1 की वैल्यू कैलकुलेट करो और B2 की वैल्यू कैलकुलेट करो। जब तक आपके पास B1 और B2 की वैल्यू नहीं आती तब तक आप यू कैन नॉट अप्लाई दिस बर्नौलीज इक्वेशन और आप P2 की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब हमारा जो सारा फोकस है, हमारा व्हाट इज द फोकस, कि हम वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ B1 एंड B2, राइट। अब देखिए A1 आपको पता है, A1 क्या होता है, पाई बाई 4 इंटू D1 स्क्वायर। तो ये अभी अपने पीछे सेम पैरामीटर से किया आपने, पाई बाई 4 इंटू D1 क्या था 0.2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आई थिंक 0.0314 मीटर स्क्वायर। ये कैलकुलेट करो, बताओ मुझे 0.0314 मीटर स्क्वायर। और इसी तरीके से आपने A2 भी कैलकुलेट कर लो। A2 क्या था, पाई बाई 4, D2 क्या है 10 सेंटीमीटर, सेम जहां पर भी सेम होगा 0.1 का होल स्क्वायर। आई थिंक दिस इज 0.0 कितना था ये, दिस इज योर 0.00785 मीटर स्क्वायर, राइट। तो ये दोनों वैल्यू आपके पास A1 और A2 की वैल्यू आपको आ गई, राइट। अब आपके पास B1 दिया है कहीं नहीं, आपने क्या करना है, पहले B1 निकालना है फिर अपने B2 निकालना है, राइट। बट आपको डिस्चार्ज दिया है, डिस्चार्ज दिया है Q, तो Q को अगर हम लिखे Q इज इक्वल टू A1 B1, दिस इज इक्वल टू A2 B2, राइट, अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो पहले मैं ये कंसिडर करता हूं Q इज इक्वल टू A1 B1, और जहां से वैल्यू मैं क्या करता हूं, B1 की वैल्यू आपकी यहां से निकल जाएगी। अब Q क्या था, व्हाट इज द Q, दिस इज 35 लीटर्स पर सेकेंड है, राइट। सो दिस इज Q आप ऐसे लिख सकते हो 35 डिवाइडेड बाई मीटर क्यूब में इसको चेंज करो, डिवाइडेड बाई 1000। सो डिवाइडेड बाई 1000 तो कितना है ना, ये आपका बन गया मीटर क्यूब पर सेकेंड, राइट। तो लगा लो ये आपका आ गया 35 बाई 1000,
दिस इज इक्वल टू व्हाट इज योर A1, अभी कैलकुलेट किया 0.0314 एंड V1 आपको निकालना है। Therefore V1 is equal to 35 divided by 1000, 0.0314। आप कैलकुलेट कर लो कितना आ गया V1 की वैल्यू। यू विल गेट हियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V1। दिस इज 1.114 मीटर पर सेकेंड। तो V1 की वैल्यू आपको मिल गया 1.114 मीटर पर सेकेंड। यू अंडरस्टैंड दिस? ये क्लियर हो गया आपको? तो B1 की वैल्यू आपने निकाल ली, इसको मिटा देते हैं हम। तो B1 की वैल्यू आप लिख लो, कहीं नोट कर लो। So V1 is 1.114 मीटर पर सेकेंड। तो V1 की वैल्यू आप लिख लो, V1 is 1.114 मीटर पर सेकेंड। अब इसी तरीके से आप B2 की वैल्यू निकाल लो। आप यही लगाएंगे आप, Q is equal to A2 into B2, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या था, A1 B1 is equal to A2 B2। जो डिस्चार्ज आपका सेक्शन 1 के ऊपर होगा सेम डिस्चार्ज आपका सेक्शन 2 के ऊपर होगा। तो Q की वैल्यू आपके पास है, दैट इज 35 बाई 1000, राइट, इज इक्वल टू व्हाट इज A2। A2 आपने निकाला था 0.00785 इंटू B2। चेक कर लो, ये 0.00785 था B2। A2 आपका, yes, therefore B2 this is equal to 35 divided by 1000, 0.00785, right? And this is equal to, calculate this is how much? So this is 4.456, this is 4.456 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो जहां पर ही नोट कर लो B2 4.456 मीटर पर सेकेंड, राइट। ये दो वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, इसको बाकी को मिटा दीजिए आप। अंडरस्टैंड दिस? अब देखिए सब कुछ आपके पास है, ओनली यू हैव टू पुट इट एंड फाइंड द इक्वेशन, राइट। अब जहां पे जो मैं आपको समझाना चाहता था कि बर्नौली इक्वेशंस का जहां पे यूज होगा, क्योंकि हमें जो P2 निकालना है, वी विल अप्लाई द बर्नौली इक्वेशन बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो लिखिए P1 क्या था, ये आपका था 39.4 इंटू ये न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर था, ये 10⁴ आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बनाने के लिए। तो रो क्या है 1000 इंटू 9, राइट, प्लस V1 स्क्वायर 1.114 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81 एंड Z1 कितना था 6। दिस इज इक्वल टू P2 अपान रो जी हमें निकालना है। P2 अपान रो जी तो आपके पास है, ये लिख लीजिए, कर लीजिए जहाँ पे 1000 इंटू 9.81, राइट। Z2 आपके पास 4 है, दिया है, एंड B2 स्क्वायर बाई 2G, B2 कितना था 4.456 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9, राइट। अब इसको आप क्या करें, सिंप्लीफाई करें, जहां से सिंप्लीफाई करें और आपको P2 का वैल्यू मिल जाएगा, नथिंग एल्स। नाउ ओनली सिंपल यू हैव टू इस्तेमाल करना है अपने इसको कैलकुलेटर को, करके बताइए मुझे।
So this is calculate this, almost this is 40 प्लस इसका क्या है 1.114 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2.91. हाउ मच दिस इज? कैलकुलेट दिस इज 0.063. so this is 0.063 plus 6. this is equal to ये आपका P2 अपॉन 1009.81 प्लस 4 प्लस इसको कैलकुलेट करो कितना आया. हाउ मच दिस इज 4.456 होल स्क्वायर इंटू 2.91. दिस इज हाउ मच? दिस इज 1.012, राइट. तो इसको आप सिंप्लीफाई करो और P2 की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लो. व्हाट इज योर P2? यू विल फाइंड आउट हियर, राइट. सो दिस इज योर so this is I think 40.27 Newton per centimeter, right. तो दिस इज ये आपका तरीका है कि हाउ यू विल use the Bernoulli's equation, and by using the Bernoulli equation you can calculate the different type of the parameters which you require here. You understand this? आप दो पॉइंट के ऊपर बर्नौली इक्वेशन लगाइए. तो किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आपको प्रेशर निकालना है, उसका वेलोसिटी निकालना है, डेटम हाइट निकालना है, कोई भी चीज निकालनी है, you equate the total energy equation at 2 points. Some parameters that will be given you in the problem and some parameter you have to find out. This is the way. Collectively, sometimes you will use the Bernoulli's equation as well as the continuity equation, and by using these two equations you can calculate any type of the parameters which is required to find out in your numerical problems, right. So this is today my lecture. और भी बहुत प्रॉब्लम्स है करने के लिए, ऑलरेडी स्टूडेंट थी, तो अगर इसमें टाइम मिला तो इसका सेपरेट लेक्चर और बनाएंगे, 2 3 4 प्रॉब्लम और करेंगे, राइट. सो थैंक यू वेरी मच.